और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी आ चुके हैं। हम आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। Here with us today. It's a great honor to welcome the leader of the world's largest democracy to the White House. I have always had a deep admiration for your country and for its people, and a profound appreciation for your rich culture, heritage, and traditions. This summer, India will celebrate the 70th anniversary of its independence, and on behalf of the United States, I want to congratulate the Indian people on this magnificent milestone in the life of your very, very incredible nation. During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. The friendship between the United States and India is built on shared values, including our shared commitment to democracy. Not many people know it, but both American and the Indian constitutions begin with the same three very beautiful words: we the people. The Prime Minister and I both understand the crucial importance of those words, which helps to form the foundation of cooperation between our two countries. Relations between countries are strongest when they are devoted to the interests of the people we serve, and after our meetings today, I will say that the relationship between India and the United States has never been stronger, has never been better. I am proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. I am thrilled to salute you, Prime Minister Modi, and the Indian people for all that you are accomplishing together. Your accomplishments have been vast. India has the fastest growing economy in the world. We hope we're going to be catching you very soon in terms of percentage increase. I have to tell you that. We're working on it. In just 2 weeks, you will begin to implement the largest tax overhaul in your country's history. We're doing that also, by the way, creating great new opportunities for your citizens. You have a big vision for improving infrastructure, and you are fighting government corruption, which is always a grave threat to democracy. Together, our countries can help chart an optimistic path into the future, one that unleashes the power of new technology, new infrastructure, and the enthusiasm and excitement of very hardworking and very dynamic people. I look forward to working with you, Mr. Prime Minister, to create jobs in our countries, to grow our economies, and to create a trading relationship that is fair and reciprocal. It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets, and that we reduce our trade deficit with your country. I was pleased to learn about an Indian Airlines recent order of 100 new American planes, one of the largest orders of its kind, which will support thousands and thousands of American jobs. We're also looking forward to exporting more American energy to India as your economy grows, including major long-term contracts to purchase American natural gas, which are right now being negotiated, and we will sign them, trying to get the price up a little bit. To further our economic partnership, I'm excited to report that the Prime Minister has invited my daughter Ivanka to lead the U.S. delegation to the Global Entrepreneurship Summit in India this fall, and I believe she has accepted. Finally, the security partnership between the United States and India is incredibly important
both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. Our militaries are working every day to enhance cooperation between our military forces, and next month they will join together with the Japanese Navy to take part in the largest maritime exercise ever conducted in the vast Indian Ocean. I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime. The North Korean regime is causing tremendous problems, and it's something that has to be dealt with, and probably dealt with rapidly. Working together, I truly believe our two countries can set an example for many other nations, make great strides in defeating common threats, and make great progress in unleashing amazing prosperity and growth. Prime Minister Modi, thank you again for joining me today and for visiting our country and our wonderful White House and Oval Office. I enjoyed our very productive conversation this afternoon and look forward to its continuation tonight at dinner. The future of our partnership has never looked brighter. India and the United States will always be tied together in friendship and respect. Prime Minister Modi, thank you very much. Thank you. Thank you. Be tied together in friendship and respect. Prime Minister Modi, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Rashtrapati Donald Trump and First Lady, Vice President, ladies and gentlemen, and media. ladies and gentlemen of the media. सर्वप्रथम ओपनिंग ट्वीट से लेकर Right from the हमारी opening वार्ता tweet के समापन तक to the end of our राष्ट्रपति talks, ट्रंप की मित्रता भरे President वेलकम का Trump's welcome, which is filled with व्हाइट friendliness, हाउस में उनके his तथा फर्स्ट लेडी द्वारा a warm welcome to the White House by अतिथि सत्कार का himself and the First Lady. I would like to thank both of you from the bottom of my heart for this warm welcome. मेरे लिए जो भाव व्यक्त किए, I would also like to भारत के give लिए जो भाव व्यक्त special किए, thanks to you, President Trump, for उसके लिए having मैं spent so much time with हृदय me, से for उनका having आभारी हूँ spoken such और मैं kind उनकी words about बेटी me का भी and my भारत country, में and I would like to स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। tell you that उन्होंने I'm मेरा eager to निमंत्रण welcome स्वीकार किया है। your daughter to राष्ट्रपति for ट्रंप, the Entrepreneurship Summit. आपने मेरे साथ इतना वक्त बिताया, President Trump, at once उसके again, लिए thank you for मैं time विशेष you've रूप spent से with me. आपका I'd like to give you special अभिनंदन thanks. करता हूँ। Thanks for that. मेरी यह यात्रा तथा मेरी आपकी My आज visit की वार्ता and our talks हमारे दोनों देशों के सहयोग के इतिहास में will mark a very important एक page अत्यंत महत्वपूर्ण in the पृष्ठ history होगा। of the collaboration and cooperation between our two nations. राष्ट्रपति ट्रंप और मेरी आज की बातचीत हर प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यह परस्पर विश्वास पर आधारित थी, क्योंकि इसके मद्देनजर ये हमारी वैल्यूज, प्राथमिकताएं, चिंताएं और रुचियों की समानता भी थी, क्योंकि यह भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के बीच परस्पर सहयोग
तथा सहभागिता की चरम सीमाओं की उपलब्धि पर वैल्यूज, प्राथमिकताएं, चिंताएं और रुचियों की समानता भी थी, क्योंकि यह भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के बीच परस्पर सहयोग तथा सहभागिता की चरम सीमाओं की उपलब्धि पर केंद्रित है, क्योंकि हम दोनों ग्लोबल इंजिन्स ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि दोनों देशों तथा समाजों का चौमुखी आर्थिक विकास तथा इनकी साझी प्रगति राष्ट्रपति जी का तथा मेरा मुख्य लक्ष्य था और आगे भी रहेगा, क्योंकि आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से अपने समाजों की सुरक्षा राष्ट्रपति ट्रंप तथा मेरी टॉपमोस्ट प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स विश्व की दो विशाल डेमोक्रेसीज का साझा सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य है। फ्रेंड्स, हमारी ऐसी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसने मानव प्रयासों के लगभग सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया है। आज की हमारी कन्वर्सेशन में राष्ट्रपति ट्रंप तथा मैंने भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों के हर आयाम पर विस्तार से चर्चा की है। दोनों ही देश एक ऐसे बायलैटरल आर्किटेक्चर को लेकर कमिटेड हैं जो हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस संदर्भ में दोनों देशों में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज पर स्ट्रांग एंगेजमेंट हमारी कोऑपरेशन में तथा संबंधों के मोमेंटम को स्ट्रांग ड्राइवर्स रहेंगे। भारत के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम में हम अमेरिका को प्रमुख पार्टनर मानते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है। इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। ट्रेड, कॉमर्स और निवेश लिंक्स का भरपूर विकास हमारे प्रयासों की साझी प्राथमिकता होगी तथा इस संदर्भ में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन तथा नॉलेज इकोनॉमी के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार और उनमें गहनता हमारे मुख्य लक्ष्यों में से एक होगा। इसके लिए हमारी सफल डिजिटल पार्टनरशिप को और सुदृढ़ करने के लिए हम कदम उठाएंगे। फ्रेंड्स, हम न केवल संभावनाओं के सहयोगी हैं, अपितु हम अपने सामने मौजूदा तथा आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भी सहभागी हैं। आज अपनी मीटिंग में हमने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से पूरे विश्व में उत्पन्न गंभीर चुनौतियों पर चर्चा की तथा इसमें अपने सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनाई। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा।
हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। हमारे बीच क्षेत्रीय मामलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में खुशहाली, शांति और स्थिरता हमारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में संभावनाओं का विस्तार तथा उभरती हुई चुनौतियों से हमारे स्ट्रेटेजिक हितों की सुरक्षा हमारी सहभागिता के आयाम निर्धारित करती रहेगी। इस क्षेत्र में हम अमेरिका के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में हमारा बढ़ता कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मैंने दोनों देशों के बीच हमने हर प्रकार से अपने बीच मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने पर भी निर्णय किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मैंने दोनों देशों के बीच बायलैटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेड तथा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप की सुदृढ़ता दोनों देशों के लिए लाभकारी होगी। हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने सामरिक हितों की भी चर्चा की है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस तथा रिजिम्स में भारत की सदस्यता के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगातार जो समर्थन मिल रहा है उसके आभारी हैं। यह हम दोनों के हित में है। राष्ट्रपति ट्रंप आपके भारत तथा मेरे प्रति मित्र भाव के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए आपकी मजबूत कमिटमेंट का अभिनंदन करता हूं। मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में हमारी म्यूचुअली बेनिफिशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई मजबूती, सकारात्मकता तथा ऊंचाई प्राप्त होगी तथा आपका बिजनेस वर्ल्ड का असीम व्यक्तिगत सफल अनुभव हमारे सहयोग को एक एग्रेसिव तथा फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा प्रदान करेगा। भारत अमेरिका संबंधों की इस यात्रा में एक उत्तम नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विश्वस्त है दोनों देशों के साझे विकास की इस यात्रा में मैं आपका एक ड्रिवन, डिटरमिन तथा डिसिसिव पार्टनर रहूंगा। एक्सेलेंसी, आज की मेरी यात्रा तथा आपसे विस्तृत बातचीत बहुत ही सफल रही है, फलदायक रही है। मंच छोड़ने से पहले मैं आपको सपरिवार भारत यात्रा पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं। उम्मीद है कि आप मुझे भारत में अपने स्वागत सत्कार का अवसर प्रदान करेंगे। अंत में एक बार फिर आपने और फर्स्ट लेडी ने जो आज मुझे स्वागत और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं।
Minister. Does that mean also? Thank you very much. Thank you very much, everybody. I appreciate it. Thank you. बहुत महत्वपूर्ण संबोधन के तहत पे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस बात का जिक्र तो जो बातचीत हुई है भारत और अमेरिका के बीच, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों बाहर आए और दोनों ने एक प्रेस रिलीज पढ़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को बहुत ही सफल बताया। उन्होंने भारत की तारीफ की कि जिस तरीके से मोदी सरकार के वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, करप्शन से लड़ा जा रहा है, और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते इससे बेहतर नहीं रहे। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उन्हें उम्मीद है कि भारत एक सच्चा दोस्त होगा। जो उनकी उम्मीद थी वो हुआ है। उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया कि आतंकवाद से लड़ना भारत अमेरिका के हित में है, और ये मोदी ने भी कहा। आतंकवाद पर दोनों देश सूचना का भी आदान प्रदान करेंगे। तो ट्रेड की बात हुई है, आतंकवाद की बात हुई है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात हुई है कि वहां पर जो समस्याएं हैं उस पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। न्यू इंडिया प्लस मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, ये दोनों देशों के लिए मौका है कि साथ में आगे बढ़ें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी विल डिस्ट्रॉय रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, यानी कि जो चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद है उसको हम मिटाएंगे। और भारत ने भी इस पर आतंकवाद पर जोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद से निपटना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। एनके सिंह साहब, जो हमारी चर्चा चल रही थी कि दो अहम मुद्दे जिन पर बातचीत होगी, एक आतंकवाद और दूसरा व्यापार, उन्हीं दोनों पर दोनों ने बात की और आतंकवाद को भारत ने खासतौर पर बहुत जोर शोर से उठाया। सुशांत, पिछले 24 घंटों से यूं कहिए कि करीब 20 घंटों से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी 4 घंटे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लगभग उन्हीं लाइंस पे ये पूरा का पूरा पूरी बातचीत जा रही है। आप देखें जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। हालांकि डिप्लोमेटिक रिलेशन में अप्रिसिएशन का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, लेकिन अप्रिसिएशन का जो लैंग्वेज यूज किया है वो लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे कि इस्लामिक टेररिज्म, ये फ्रेज बहुत ही रेयर केसेस में आता है। टेररिज्म कह के आप छोड़ देते हैं ताकि वो किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई ना किया जाए। इस्लामिक टेररिज्म को हम बर्बाद कर देंगे, हम उसको नष्ट करेंगे, ये स्ट्रांग वर्डेड माना जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से जो दोनों की केमिस्ट्री है वो बेहतर हुई है और जितना एक्सपेक्टेड लाइन पर गेम भारत के लिए ज्यादा है। अभी तक जो मैं पढ़ पाया हूं, जो दोनों नेताओं ने स्टेटमेंट दिया है, उससे मुझे लग रहा है कि जो कॉन्टेंशियस इश्यूज थे उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है और जो मेन था, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडो पैसिफिक पे, टेररिज्म पे, और टेररिज्म पे ये कि हम लोग जो सूचना एक्सचेंज करेंगे, तो मुझे लगता है जो भारत की जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको ये काफी हद तक देने के मन में मूड बना चुके हैं। और दूसरा ये है कि हमारी जो बाकी रिक्वायरमेंट्स थी उस पर भी ये तय हो गया है कि हम ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे। तो ये इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा ये जो मीटिंग हुई है, और जो अगले 2 घंटे में जो डिस्कशन होगा मुझे लगता है कि वो इंडिया के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। अमेरिका के लिए कितना होगा ये आगे समझ। सज्जनार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक बार हम चलते हैं व्हाइट हाउस के बाहर, हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया मौजूद हैं। दीपक, आतंकवाद और व्यापार, इन्हीं दोनों पर दोनों देशों का फोकस रहा है मोटे तौर पर। नहीं सुशांत, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को जरूर एनालाइज करूंगा कि डिप्लोमेसी में जब ऐसी भाषा बोली जाती है तो उसका क्या मतलब होता है। उन्होंने सबसे पहले बात की कल्चर की, कि कितनी बड़ी कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की, और इसी कल्चरल हेरिटेज के बारे में प्रधानमंत्री ने
क्या कहा था हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज के बाद बोला था कि हमारी तो परंपरा है, हमारा कल्चर है कि अब 5000 साल से पर्यावरण को बचा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात हुई होगी और इसी का इंडिकेशन कल्चर, हेरिटेज और जो परंपराएं हैं उस शब्द के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो दूसरे मुद्दे पर आता हूं, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। उनके शब्द ये सीधे सीधे नहीं थे, लेकिन भारत के साथ एक ही प्लस पॉइंट आता है। मैंने 1998 का परमाणु विस्फोट देखा था, पोखरण 2 वाला, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड की रिएक्शन भी देखी थी। सिर्फ पूरा वर्ल्ड चिंता जाहिर कर पाया था, ये नहीं कह पाया था कि आपने ये करके गलत किया, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत है और यहां पर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। तीसरी बात, उन दोनों ने अपने आप की तारीफ भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दोनों वर्ल्ड लीडर हैं सोशल मीडिया में, यानी वो बात कर रहे थे ट्विटर की, यानी वो बात कर रहे थे फेसबुक की। ट्रंप क्या लिखते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, मोदी जी क्या लिखते हैं, ये हम सबको पता है। तो उन्होंने अब एक दूसरे की तारीफ भी कर दी कि हम वर्ल्ड लीडर है सोशल मीडिया पर। फिर उन्होंने एक बात कही जो उनका कंसर्न था, उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय लोगों के कंट्रीब्यूशन को स्वीकारते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोग भी अमेरिका के अंदर जॉब क्रिएट करेंगे। यानी दोनों विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन इसलिए है कि अमेरिकन को लगता है कि भारतीय लोग यहां पर आते हैं, अच्छी सैलरी में आते हैं और अमेरिकन के जॉब छीन रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि काउंटर में भारत की कंपनियां भी यहां पर आए और भारत की कंपनी भी यहां पर जॉब्स क्रिएट करें। तो मुझे लगता है कि H1B वीजा के इश्यू पे कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच जरूर बनी होगी। तीसरी बात उन्होंने कही कि प्लेन के बारे में कि उन्होंने किस तरह के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कही है। तीसरी बात उन्होंने एनर्जी की कही, गैस की कही, जो भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। एनर्जी आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी जरूरत है और न्यूक्लियर एनर्जी भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। यह संकेत है कि उन्होंने NSG के बारे में, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, उसके बारे में भी कोई ना कोई बात टच की होगी। डिप्लोमेसी में सुशांत ऐसा कभी नहीं होता कि बाहर आके दोनों लोग एक साथ अनाउंस करें कि हमने ये कह दिया है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये चीजें धीरे धीरे होती है और ये चीजें धीरे धीरे होने के साथ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से होती है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस शब्द का डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल मैंने पहली बार 1998 में देखा था। इस शब्द का इस्तेमाल इजराइल ने किया था और भारत ने किया था इजराइल में। जब लालकृष्ण आडवाणी गए थे इजराइल की यात्रा पर, तब उन्होंने कहा था कि हम इस्लामिक टेररिज्म के शिकार हैं और साथ ही साथ इजराइल भी इस्लामिक टेररिज्म का शिकार है। आज वो बात अमेरिका भी मानता है 2001 के बारे में। अगर टेररिज्म कोई बड़ा खतरा है तो वो इसलिए बना है कि वो इस आइडियोलॉजी के साथ आया है। इसको उन्होंने इस्लामिक टेररिज्म नाम दिया है। सुशांत, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की दूसरी बात को, और मैं अगर कहूं कि बीजेपी की फिलॉसफी को उन्होंने इंडोर्स किया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जॉइंट नेवी एक्सरसाइज होगी। मैंने बहुत एंजॉय किया मोदी के साथ। तो ये सब बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर, जो डिप्लोमेसी के अंदर कही जाती हैं। लेकिन उधर मोदी साहब की बात को मैं एनालाइज करूं तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा वार्म वेलकम किया, मेरा जो इन्विटेशन था वो सार्थक रहा, ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ है हम। और चौथी बात उन्होंने कही कि अफगानिस्तान के विकास के लिए हम दोनों लगे हुए हैं और भारत और अमेरिका की प्रॉब्लम जो है वो अफगानिस्तान के लिए, भारत और अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की प्रॉब्लम उनके लिए कंसर्न है और वो अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने का कमिटमेंट रखते हैं। अफगान की प्रॉब्लम उनके लिए कंसर्न है और वो अफगानिस्तान को रिबिल्ड करने का कमिटमेंट रखते हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा मतलब नासूर है पाकिस्तान के लिए। नासूर शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो गलत होगा, लेकिन इतना बड़ा दर्द है वो पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के सिचुएशन से कैसे निपटे, क्योंकि वो उसके पड़ोस में है। उसके लिए दोनों बॉर्डर खुले हुए हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी लगातार संघर्ष हो रहा है और भारत के बॉर्डर पर भी लगातार संघर्ष हो रहा है। तो मेरे ख्याल से
इस अफगानिस्तान का जिक्र करके उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र ऑटोमेटिकली कर दिया है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि कभी भी दो देश के प्रधानमंत्री एक देश की शिकायत यानी पाकिस्तान की शिकायत नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान की शिकायत भी करते हैं तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत रोता हुआ बच्चा नहीं बनना चाहता है, भारत वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। रोते हुए बच्चे का मतलब होता है कि हम रोएं कि पाकिस्तान ने जरा हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, बम फोड़ दिया, आतंकवादी भेज दिए। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अपने कंसर्न एक्सप्रेस किए होंगे, पर लार्जर इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ साउथ एशिया और बाकी चीजों के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि जो स्टेटमेंट निकल कर आया है उसमें ऐसे कई संकेत हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि ये बातचीत सफल रही, ये बातचीत अच्छी रही, और इस कल्चर को, जिस कल्चर को ट्रंप ने स्वीकारा है वो कल्चर सदियों पुराना है। इस बात को ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव दोनों के बीच बात जरूर रही होगी। सुशांत जी।